Good evening everyone, and this time I'm going to discuss with you non-cooperation movement, its objectives, its programs, right, the activities, right, and why it was withdrawn. These are the four things that I'm going to discuss with you. But before that, I want to tell you this is one of the most significant movement launched by Indians against the British. And the first one amongst them, the first one after the revolt of 1857, 1857 के बाद अगर अंग्रेज़ों की कभी आंखें खुली थीं, that was just because of this movement, that is non-cooperation movement, right? It was a mass movement. हर एक व्यक्ति ने participate किया at each and every single level. भाई students participate कर रहे थे, lawyers participate कर रहे थे, common masses participate कर रहे थे. I mean to say कि people belonging to every section of the society participated in the movement. हर एक व्यक्ति ने participate किया. और मज़ेदार बात ये रही कि it became a mass movement. पहले जो national movement कभी विशिष्ट वर्ग तक सीमित थी, that was limited to the elite group that reached to the masses, वो masses तक पहुँच गई. Now the masses started talking about these sort of things. आज चौक पे खड़े चार हिंदुस्तानी आपस में बात कर रहे थे, यार ये चीज़ होनी चाहिए थी, या ये चीज़ होनी चाहिए थी. Earlier it wasn't there, right? There were a number of incidents that brought Indians to this level. For example, the Jallianwala Bagh tragedy. Every single Indian was shocked with that thing. हर एक के दिल में आक्रोश था, हर एक के दिल में गुस्सा था. Every single, चाहे ये चीज़ that no doubt it happened in अमृतसर में, पंजाब में हुई, but each and every single Indian residing in any part of the world was having an agitation, was having एक kind of, जैसे कहते हैं ना, आक्रोश उसके दिल में रहा, चाहे वो हिंदुस्तान में था, चाहे वो विदेश में रहा. तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने हमें यहाँ पे ला खड़ा किया. खिलाफत मूवमेंट पहले लॉन्च हो चुकी थी, राइट? हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर इस काम कर रहे थे, बोथ वर वर्किंग टुगेदर. अब कुछ रिलक्टेंसी के बाद, कुछ आनाकानी की हिचकिचाहट के बाद फिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट निकल के सामने आती है. गांधी जी वॉज द पर्सन हु गिव दिस प्रपोजल. अर्लियर फेज़ में माना जाता है कि लाला लाजपत राय जो प्रेसिडेंट रहे एक सेशन में, ही अपोज टू इट. सी आर दास वॉज अपोज टू इट, बट लेटर ऑन दे एक्सेप्टेड इट. इसे मान लिया गया. और माना क्यों गया कि ये एक प्रपोज़ल दिया गया गांधी जी के द्वारा कि भाई हम लोग कितने देर से इन लोगों का साथ दे रहे हैं, वी आर कोऑपरेटिंग विद दीज ब्रिटिश फॉर सो मैनी ईयर्स, लेट्स स्टॉप कोऑपरेटिंग विद देम, लेट्स डिसाइड नॉट टू कोऑपरेट एंड लेट्स गो विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ऑब्जेक्टिव सेटअप किए गए इसके लिए, राइट? ये दो अलग अलग सेशन के दौरान ये चीज़ निकल के सामने आई थी. पहला तो था कोलकाता सेशन एंड सेकंड वाज द नागपुर सेशन, डेफिनेटली इन द ईयर 1920, and they set up some objectives for themselves. The very first objective they set up was the attainment of self-government within British rule or outside if necessary. If they are ready to give it, अगर तो वो देते हैं, मान लेते हैं, then it is fine. अगर नहीं है तो भाई उनके बिना भी कोई बात नहीं. सेकेंड थिंग, annulment of Rowlatt Act. Rowlatt Act जिम्मेदार बनता है एक बड़ी ट्रेजिडी की हिंदुस्तान में, दैट वाज जलियांवाला बाग मसाकर. Just because of this Rowlatt Act, just because of this Black Act, right, that incident took place. Definitely General O'Dwyer was definitely an evil person, no doubt about it. But this Rowlatt Act became one of the cause of the Jallianwala Bagh tragedy. Now the people of India or the Indian National Congress, they decided, let's put pressure on the government to annul it. Annul मतलब होता है कि कैंसिल करना, ऑफिशियली किसी चीज़ को कैंसिल कर देना. थर्ड थिंग, remedying of Khilafat movement. Khilafat movement was going on, right? No doubt about it, it was going on. What was the demand of Khilafat movement? The attitude that adopted by the British for the Sultan of Turkey, उस तुर्की के सुल्तान के लिए जो एटीट्यूड अपनाया गया था, that was not acceptable to the Muslim people. Now, with the help of Muslims, these Indian people of Indian National Congress, well, let's consider them as Hindus. Hindus and Muslim joined together to launch a movement which was Khilafat movement in order to change the attitude of the British for the Sultan of Turkey and Turkey.
ये 3 4 चीज़ें जो थी, दीज आर द थिंग्स विच वर सेट अप एज एन ऑब्जेक्टिव बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी. तो इन ऑर्डर टू अचीव दीज थिंग्स दे सेट सम प्रोग्राम्स फॉर देमसेल्व्स. यहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचेंगे कैसे, क्या क्या चीज़ें हम लोग करेंगे. हम लोग ये तो करेंगे डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, पहली चीज़. दूसरी चीज़, उनको ना कोऑपरेट करने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे. फर्स्ट, बाइकॉट, राइट. दिस विल बी द फर्स्ट मेथड. बाइकॉट क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बाइकॉट ऑफ इलेक्शंस to be held for the councils as suggested by the reforms of 1919. Remember, there was an act which was given in the year 1919, Montague-Chelmsford Reform. वहाँ पे इन लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन करवाने थे. कह रहे हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, राइट. थर्ड थिंग, रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड सीट्स इन द लोकल बॉडीज, सरेंडर ऑफ द टाइटल्स एंड ऑनरी ऑफिसेज, रिफ्यूजल टू अटेंड द गवर्नमेंट फंक्शंस. ये कर दो बाइकॉट. स्कूल्स बाइकॉट कर दो, गवर्नमेंट फंक्शंस बाइकॉट कर दो, टाइटल्स वापस कर दो, राइट. गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन में जाना बंद कर दो. नेक्स्ट थिंग, स्वदेशी. अब ये बाइकॉट तो कर दिया, हमें खुद को रेज करना था. इन ऑर्डर टू रेज आवर सेल्फ, व्हाट वी गोइंग टू डू, स्वदेशी अपनाओ. पॉपुलराइजेशन ऑफ स्वदेशी एंड खादी बाय रिवाइविंग हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ national schools and colleges and private arbitration courts known as panchayats all over India, development of unity between Hindus and Muslim, removal of untouchability. ये एक ऐसा aspect है removal of untouchability का which was introduced for the first time in the national movement by Gandhi ji. ये मतलब एक ethically on a humanitarian ground it was given कि बाकी सारे काम तो हम लोग करेंगे. डेफिनेटली वी ट्राई टू अचीव सम कॉन्स्टिट्यूशनल गेन, सम पॉलिटिकल गेन, लेकिन उसके अलावा ये जो हमारे समाज में एक कुरीति है जिसे अछूत कहा जाता है या अनटचेबिलिटी कहा जाता है, ये चीज़ ख़त्म करनी है हमें. दिस थिंग वी हैव टू स्टॉप. एमेंसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. वंस अगेन, एमेंसिपेशन, फ्रीडम एंड अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन. अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली समाज तरक्की करेगा. अगर औरत तरक्की कर रही है तो समाज तरक्की कर रहा है. दिस थिंग was suggested under Swadeshi movement and these are the constructive programs, a kind of constructive programs which were introduced by Mahatma Gandhi, right. तो पहले ऑब्जेक्टिव सेटअप किए गए. वजह क्या रही, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऑब्जेक्टिव सेटअप किए गए और इन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए एंड दिस होल सिनारियो कंसिडर्ड एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट.